Hello and welcome everyone. This is our first lecture of class 8 mathematics. Okay. So now we are going to start our syllabus of class 8 maths. So we are going to start with the very first chapter. The name of the chapter is rational and irrational numbers. So in this particular lecture, we are going to discuss types of numbers, number line, and comparison of rational numbers, decimal rational numbers and irrational numbers. Okay, so in this lecture we are going to discuss first 2 points, that is types of numbers and number line, and in the another lecture we are going to discuss the third and fourth point. Okay, so let us start our today's lecture. So now first type of number that we are going to discuss is natural numbers. Okay, so what is a natural number? It is a number that range from 1 to infinity. That is, numbers which are positive are called as natural numbers. So number which starts from 1. Okay, the numbers which are starting from 1 and they are going to end at infinity. Okay, we don't know what is the last number. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. So these numbers are called as natural numbers, and these numbers are positive, means they have positive sign. Okay, so plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 and so on. So the numbers which are starting from 1 are called as natural numbers. Okay, now why 0 is not a natural number? We know that 0, 1, 2, 3, 4, this can be the sequence, but we are not considering 0 as a natural number. The reason behind it is that 0 is neither positive nor negative number. So in the definition we can see the numbers which are positive. So if number is positive, then it is going to be called as natural number. But 0 is neither positive nor negative. So 0 is not positive and it is also not negative. Okay, so therefore 0 is not included in a sequence of natural numbers. Okay, now the another type is whole numbers. Now what is whole number? These are numbers ranging from 0 to infinity and are called as whole numbers. Okay, so in this series, the number starts from the 0. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on till infinity. Okay, so these numbers are called as whole numbers. Okay, now the numbers which are fractions, that is in the form of A upon B, okay, or decimal number, that is having a decimal point, for example 7.12. Okay, this is a decimal number as it has a decimal point. The negative numbers, for example -2, -4. Okay, so these numbers are neither natural nor whole number. Okay, we have to remember that fractions, decimals and negative numbers are neither considered as natural number or whole number. Okay, now I'll see the next type, that is integers. Now what is meant by integer? These have negative, whole and natural numbers. Okay, so integers are the group of negative numbers, whole numbers and natural numbers. Okay, so here you can see it starts from negative infinity. Okay, so -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 to positive infinity. Okay, here it is negative infinity. We don't know what is the last negative number, so negative infinity, and it is going to end at positive infinity. Okay, we don't know what is the last positive number, so infinity. Okay, and between these two infinities lies the integers having negative,
whole and natural numbers. Okay, now integers ranges from negative to positive infinity, from negative infinity to positive infinity. This is the symbol of infinity. Okay, now this is about integers. Now next is rational numbers. Now as the name of the chapter is rational and irrational number, so what is a rational number now? The numbers of the form m upon n are called rational numbers. Okay, so numbers which are fractions, for example this 7 upon 2, or for example 3 upon 5. Okay, another example minus 9 upon 2, or we can write it as 5 upon 4. So these are the examples of fractions. Okay, so the fraction or the numbers in the form of m upon n. Okay, so there is numerator and there is denominator. Okay, so in this form, numbers in this form are called as rational numbers. Okay, and we have to remember that m and n are integers. Okay, this m means the numerator it is an integer, and the denominator it is also an integer. Okay, but n is not 0. Okay, so we have to remember that in any case for a rational number, n is not going to be equal to 0. So n is not equal to 0. We have to remember in the fraction m upon n, n is not going to be equal to 0. Okay, why? Because if we divide any number by 0, the answer becomes 0. Okay, and 0 is not a rational number. Okay, so we have to keep in mind that numbers of the form m upon n are called rational numbers, and n in this fraction is never equal to 0. Okay, next, these numbers are represented on a number line. Okay, there is one line we can draw, and on that line we can represent numbers. Okay, rational numbers. Okay, now you can see in this figure there is a number line. Okay, now 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are these numbers towards the right side. Okay, these are positive numbers. Okay, and the numbers on the left side of 0, these are negative numbers. Okay, now always remember the numbers on the right side are greater than the numbers on the left side. So this 2 is bigger than 1. This 7 is bigger than 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. So every number from the left side of 7 is smaller than 7. Okay, जितने भी नंबर्स 7 के लेफ्ट साइड में हैं, these numbers, these are smaller than 7. Okay, now 8 is bigger than these all numbers. Okay, minus 9 to 7 जितने भी numbers है सबके सब 8 से क्या है, small है, छोटे हैं. Okay, now look at these negative numbers. Now this minus 2, this is bigger than minus 4, minus 3, minus 5, minus 6. Okay, so the number which are on the right side are bigger and the numbers which are on the left side are smaller. Okay, remember this. So we have to keep this in mind. Okay, that minus 2 is bigger than minus 3. Okay, as minus 3 is on the left side of minus 2, it is smaller than minus 2. So this number line is used to study rational numbers and to compare these rational numbers. Okay, now how we will show these rational numbers on a number line? Now here you can see 7 upon 3, it is a rational number. 2 minus 2 upon 3, these are the rational numbers.
Now we want to represent these rational numbers on a number line. So this is a line drawn over here. Okay, now basically we have 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 and -3 in a number line. Okay, now we can represent 2 easily, okay, as this is 2, okay, on the number line. But we want to represent 7 upon 3. Okay, so 7 upon 3, we know this 7 upon 3 is going to be bigger than 2, as 3 ones are 3, 3 twos are 6, okay, point, then 1 left, 0, so 10, so 3 threes are 9, so we get 2.3. so 2.3 definitely it is bigger than 2 and it is smaller than 3. ये जो 2.3 है मतलब 7/3 जो ये फ्रैक्शन है हमारा, ये जो रैशनल नंबर है वो 2 से बड़ा है और 3 से क्या है वो छोटा है. सो ऐसे टाइम पे, ऐसे कंडीशन में हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन में, वो हमें समझना है. सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 7/3 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 1/3. क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 इंटू 1/3. ओके, 7 1 7/3, 7/3 1 एंड द सेम. 7/3 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 1/3. अब हमें यहाँ पर एक फ्रैक्शन मिला है 1/3. इसका मतलब क्या, 1/3 पार्ट, मतलब कि 1 का 3 हिस्सा. सो दिस डिविजन्स, ओके, these points which are more darker than the other points, okay, so we have to divide this distance between these 2 points in 3 equal parts. okay, 0 और 1, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पे एक हमारा पार्ट है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, देन दिस इज सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट. हमने 3 इक्वल पार्ट में क्या किया, उसको डिवाइड किया बाय मेकिंग दिस पॉइंट्स. ओके, अब सिमिलरली यहाँ पे भी हमने किया, 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. नाउ 7/3 is nothing but 2.3. सिमिलरली 2 से लेकर के 3 के डिस्टेंस को भी डिवाइड किया हमने, क्योंकि 7/3 क्या है, 2 और 3 के बीच में है. सो 2 और 3 के बीच का नंबर है, उसको हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया. नाउ 2.3 मतलब यहाँ पे 2.3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2.6 और यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 7/3 क्या होगा, इस 2 के बाद का जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 7/3 मिलेगा. ओके, सो इस तरीके से हम लोग ने 7/3 को रिप्रेजेंट किया. सिमिलरली -2/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 0 और -1. ओके, -2/3 है, इसका मतलब क्या, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा नंबर है, इट इज स्मॉलर देन 1. सो हम लोग क्या करेंगे, 0 से -1 तक का जो डिस्टेंस है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके बाद 1/3 जो डिस्टेंस है 0 से वो हम लोग मेजर करेंगे, वो फाइंड करेंगे, और -2/3 को यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे. देखो क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू separate this fraction as 7 into 1/3. Therefore each unit on the right side of the 0 is to be divided. तो राइट साइड, 0 से राइट साइड में जितने भी यूनिट है उसको डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट्स में. सो हम लोग ने हर एक यूनिट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. यहाँ पे 0 से 1 का जो यूनिट है वहाँ पे भी हम लोग ने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. फिर 1 से 2 के यूनिट को हम लोग ने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. फिर 2 से 3 के यूनिट को हम लोग ने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. ओके, एंड सो ऑन.
Now the seventh point from 0 shows 7/3. 0 से जो सातवां पॉइंट होगा, सो यहाँ पे 0 है हमारा। ओके, इससे सेवन्थ पॉइंट, सातवां पॉइंट कौन सा, देखो यहाँ पे पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, ये छठा पॉइंट और ये हमारा सातवां पॉइंट था। तो इस सातवें पॉइंट पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया, 7/3 को रिप्रेजेंट किया। ओके, क्या किया हमने, 7/3 को 7 × 1/3 पहले कंसिडर किया। ओके, सो हमें पता चल गया कि हर एक यूनिट को 3 हिस्से में डिवाइड करना है। सो यहाँ पे हमारा जो पहला यूनिट था 0 से 1 तक का, उसको हम लोग ने 3 हिस्से में डिवाइड किया। वी गेट दिस 2 पॉइंट्स बिटवीन दिस यूनिट। सिमिलरली हमने बाकी सभी यूनिट्स को भी 3-3 हिस्सों में डिवाइड किया। ओके, अब 7/3 है। ओके, मतलब क्या है कि सातवां हिस्सा, 1/3 का सातवां पॉइंट। सो यहाँ पे 0 से हम लोग जब सेवेंथ पॉइंट की तरफ जाएंगे, सो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट एंड दिस इज आवर सेवेंथ पॉइंट। तो वहाँ पे हमने 7/3 को रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली -2/3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 × 1/3। ओके, सो ये क्या है, माइनस जो है उसको हम लोग भूल जाते हैं और 2 को सिर्फ याद रखते हैं। तो 2 मतलब क्या, सेकेंड पॉइंट फ्रॉम 0, क्या होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट फ्रॉम 0। अब माइनस साइन है इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे, 0 के लेफ्ट साइड में। सो यहाँ पे हमारा 0 है, इसका यहाँ पे लेफ्ट साइड, सो फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। सो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया -2/3। सो इस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ we will solve some questions from the exercise. So practice set 1.1 से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है 3/2 है, 5/2 और -3/2। सो 3 रैशनल नंबर्स है यहाँ पे, 3/2, 5/2 और -3/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हमें दिया हुआ है, 2 है, अगेन 2, अगेन 2। इसका मतलब क्या, 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 3 × 1/2। बाकी दोनों फ्रैक्शंस के लिए भी कंडीशन सेम रहेगा। तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन क्या मिला, अभी 1/2 मिला है। मतलब हमें हर एक यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ईच यूनिट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हम लोग ने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। ओके, 0 1 2 3, 0 -1 -2। ओके, और इसको डिवाइड करने के बाद, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद, अब हम लोग इन फ्रैक्शंस को, इन रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा पहला रैशनल नंबर क्या है, 3/2। मतलब क्या, 0 के राइट साइड में थर्ड पॉइंट, तो ये 0 है हमारा यहाँ पे, इसके राइट साइड में थर्ड पॉइंट। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे हमने 3/2 को रिप्रेजेंट किया। ओके, दूसरा क्या हमारा 5/2 है। मतलब क्या, 0 के राइट साइड में फिफ्थ पॉइंट, कितना पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। सो यहाँ पे 0 है हमारा ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड यहाँ पे हमारा क्या आ गया, फिफ्थ पॉइंट आ गया। सो 5/2 को हमने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद -3/2 है। ओके, सो माइनस को थोड़ा भूल जाते हैं। अब 3/2 अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, सो ये क्या है, 0 से थर्ड पॉइंट। अब माइनस है मतलब क्या, हम लोग फिर लेफ्ट साइड में जाएंगे। सो यहाँ पे 0 है हमारा, इसके लेफ्ट साइड में जाना है हमें। सो थर्ड पॉइंट देखना है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट और ये हमारा थर्ड पॉइंट। सो -3/2 ये हमारा नंबर लाइन क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमारा स्टार्टिंग कैसा होगा, फर्स्ट वी हैव टू राइट द थ्री फ्रैक्शंस, ये तीनों फ्रैक्शंस हमें लिखने होंगे। उसके बाद उनका डिनोमिनेटर में क्या नंबर दिया हुआ है वो हमें नोट करना है। सो द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 2। ओके, सो हम लोग हर एक यूनिट को कितने बार डिवाइड करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, सो हर एक यूनिट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, और फिर हम लोग फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे इस पर्टिकुलर नंबर लाइन में। ओके, यहाँ पे और दो एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चन 2 देख लो। 7/5 है, -2/5 है और -4/5 है। तो डिनोमिनेटर में हमारा नंबर क्या है, 5 है। ओके, इसका मतलब क्या है कि हम अपने नंबर लाइन में हर एक यूनिट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो वी हैव डिवाइडेड ईच unit in a number line into 5 equal parts, 1 2 3 4 and 5 equal parts. Okay, now first rational number is 7/5. So ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो हम लोग जीरो के राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो जीरो के राइट साइड में, सो जीरो के राइट साइड में सेवेंथ पॉइंट, कितना पॉइंट, सेवेंथ। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ पॉइंट हमारा, और यहाँ पर ये क्या है, हमारा सेवेंथ पॉइंट है। सो 7/5 मिला हमें, क्या मिला, 7/5। अब सिमिलरली -2/5 है, माइनस को थोड़ा भूल जाते हैं, 2/5 देखते, तो 2/5 मतलब क्या, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पॉइंट फ्रॉम द जीरो। सो माइनस है तो हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे। ओके, जीरो से लेफ्ट साइड में। सो सेकेंड पॉइंट देखना है हमें, फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट। सो ये क्या हो गया, -2/5 हो गया। सिमिलरली -4/5 मतलब क्या, फोर्थ पॉइंट फ्रॉम द जीरो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और ये हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट है। सो -4/5 आया समझ में। सो यह हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, हियर द डिनोमिनेटर ऑफ इच फ्रैक्शन इज 8। देखो यहाँ पे पहला रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। इसका मतलब क्या है कि हमें हर एक यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट में। अब यहाँ पे हमारा ये यूनिट देख लो आप, 0 से 1 तक का जो यूनिट है उसको 8 पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे, सेकेंड पार्ट है यहाँ पे, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ पार्ट, सेवेंथ पार्ट और यहाँ पे 8th पार्ट है। ओके, सो टोटल 8 बराबर हिस्सों में हमने क्या किया है, यूनिट को डिवाइड किया है, नंबर लाइन के हर एक यूनिट को। अब -5/8 है, मतलब कि जीरो के लेफ्ट साइड में फिफ्थ पॉइंट। सो ये है हमारा जीरो है यहाँ पे। ओके, इसके लेफ्ट साइड में पांचवा पॉइंट। सो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है हमारा, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है और यहाँ पे हमारा पांचवा पॉइंट है। सो दिस इज -5/8। अब 11/8 है, सो जीरो के राइट साइड में 11th पॉइंट, 11वां पॉइंट, तो ये जीरो है, राइट साइड में जाएंगे हम लोग। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, ये फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है, ये सिक्स्थ पॉइंट है, ये सेवेंथ पॉइंट है, दिस इज 8th पॉइंट, दिस इज 9th पॉइंट और ये हमारा 10th पॉइंट है और ये हमारा क्या है, 11th पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 11/8 को। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 11/8 इस पॉइंट के नीचे। आया समझ में। तो ये क्या है हमारा, हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, तो आपका आज का होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कंप्लीट एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1.4 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1.4 आप लोग सॉल्व करो और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो प्रैक्टिस सेट 1.1 का। ओके, और जितने सम्स अभी मैंने सिखाया हूँ, ये तीनों सम्स, तीनों न्यूमेरिक, तीनों प्रॉब्लम्स जो है, तो आपको क्या करना है, लिखना है, इसको भी समझना है। ओके,
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहाँ पूछना है आपको मालूम है। ओके, सो थैंक यू, विल मीट इन आवर नेक्स्ट lecture.